Hello everybody, I welcome you all for today's session. In today's session, we will continue Kingdom Monera. In last session, we studied about the Archaebacteria, then Eubacteria, structure of Eubacteria. Okay, various characteristic features we already studied about the Eubacteria. Okay, highlights of last lecture. The Kingdom Monera consists all unicellular prokaryotic organisms. That is the simplest organisms which are present in the Kingdom Monera. Okay, the organisms of the Kingdom Monera which are present everywhere in the surrounding, whether they are present in the air, they are present in the water, also in depth of water or in extreme environment, whatever, everywhere they are present. So they are divided into various classes. In that, the first class is the Archaebacteria, which is an ancient organism. Second class is the Eubacteria. The next, third class is an Cyanobacteria. After that, Actinomycetes, and last one is a Mycoplasma. Okay, so these are 5 categories or the classes of the Kingdom Monera. From that, we finished the first category, that is the Archaebacteria, and second one we finished half. So first we completed, that is Archaebacteria. Highlights of Archaebacteria is that are the ancient or the oldest prokaryotes in the living world. Okay, they are live in an extreme environment, hence mostly they are called as the extremophiles. In that, 3 types are there. In that, some are, that is thermoacidophiles, some are halophiles, and some are which are present in the harsh places or which are present in the marshy places. Okay, so in this condition they are divided into these 3 conditions. Next one, we studied their specific structure. So the cell wall of the Archaebacteria is different than the all true bacteria which are present in the Kingdom Monera. How it is different? So it is different on the basis of their content, their composition. Cell wall of Archaebacteria having pseudopeptidoglycan layer, as the bacterias or the Eubacteria having the peptidoglycan layer. Is it clear? In Eubacteria there is NAG and NAM linkage which is linked with beta 1,3 linkage, but here which is linked with beta 1,4 linkage, but in the in the Archaebacteria there is NAT and NAG which are linked with the beta 1,4 glycosidic linkage. Beta 1,4 glycosidic linkage can't be broken by the lysozymes. Hence, the Archaebacteria are the lysozyme resistant bacteria. So these are specific highlights of the Archaebacteria. The next one is Eubacteria. Eubacteria, they are called as the true bacteria, and we studied all characteristic features in the prokaryotic cell in the chapter Cell, the Unit of Life. Is it clear? So in last lecture we just recall that, or we reminded that everything which related with the prokaryotic cell. Now from today we are continues the Eubacteria with the nutrition. अब हम लोग जो Eubacteria ये मोनेरन्स जो देखने वाले हैं, तो इसके अंदर का नेक्स्ट कैरेक्टर, हमने पहले इसका ऑकरेंस देखा है, हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा है, ठीक है। अभी हम इसका जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन, हाउ दे प्रोड्यूस देयर, हाउ दे यूजेस द फूड मटेरियल फॉर देयर एनर्जी और एज ए एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के लिए वो फूड मटेरियल कैसे यूज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फूड मटेरियल खुद अपना बना लेते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, सम बैक्टीरियाज दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द फूड मटेरियल. Okay, so on the basis of that we differentiate them. Already we studied in the 10th class.
आप लोगों ने इसको 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर आप बैक्टीरिया को डिवाइड करते हो और कुछ ऑर्गेनिजम्स को भी आप डिवाइड करते हो। तो जो ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड मटेरियल, देन दैट ऑर्गेनिजम्स आर, जस्ट ए माइंड, आप लोग खुद सोचो आपके माइंड के अंदर वो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ओके तो आपके दिमाग में बात आएगी कौन से हैं, दैट आर दी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो दूसरों पर डिपेंड है, जैसे हम लोग हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, हम लोग बैक्टीरिया में नहीं आते, लेकिन फिर बैक्टीरिया भी हो गए और कुछ ऑर्गेनिजम्स भी हो गए, तो ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं उनके फूड मटेरियल के लिए। सो दैट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज, रिमाइंड करो, सोचो क्या हो सकता। तो आप लोगों के ब्रेन में बात आई होगी, दैट इज एन हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हम भी इनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है और कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक है। मैं इनको यहां पर डिफरेंशिएट करता हूं और आपको डिफरेंस फॉर्म के अंदर उसको सामने रखता हूं। सो सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, ओके, एंड सम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक। सो न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर मैंने इन दोनों को अलग किया, सेपरेट किया। अब इनके एक एक पॉइंट हम देखेंगे। ऑटोट्रॉपिक प्रोड्यूस ओन फूड मटेरियल, प्रोड्यूसेस ओन फूड मटेरियल। हेटेरोट्रॉपिक दे डू नॉट और कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड देयर ओन फूड मटेरियल। ऑटोट्रॉपिक खुद का फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक खुद का फूड मटेरियल खुद बना नहीं सकते। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसके अंदर देखेंगे, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स क्यों खुद का फूड मटेरियल खुद बना सकते हैं? बिकॉज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स यूजेस द कार्बन सोर्स फ्रॉम द कंटेंट और फ्रॉम द मटेरियल विच इज अदर देन द ऑर्गेनिक मटेरियल। ये इनका कार्बन सोर्स जो है वो कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक मटेरियल ना यूज करते हुए ये डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक यूज करते हैं और कुछ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटरनल मैकेनिज्म द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो उन कार्बन डाइऑक्साइड को, उन कार्बन को वो यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको ये पॉइंट दूंगा कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स यूजेस द सोर्स ऑफ कार्बन, जो सोर्स ऑफ कार्बन होगा ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। इनका जो सोर्स ऑफ कार्बन है, सोर्स ऑफ कार्बन इज एन atmospheric CO2, okay, and heterotropic they do not uses the atmospheric carbon dioxide। ये atmospheric carbon dioxide यूज नहीं कर सकते, ये atmospheric और carbon dioxide यूज नहीं कर सकते, hence because of that they can't produce their own food material। तो वो खुद का फूड मटेरियल खुद बना नहीं सकते। आपको इसके पीछे का जो कॉज है, वजह है, आपके ये समझ में आ गई होगी क्या, कि यहां पर ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सटर्नल सोर्स इसके अंदर यूज करते हैं। और जो एक्सटर्नल सोर्स इसके अंदर जो यूज करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो सोर्स ऑफ कार्बन, इसमें जो सोर्स होगा दैट इज एन एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इनके अंदर से ये कार्बन को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अभी ये ऑटोट्रॉपिक को डिफरेंशिएट, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक को डिफरेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट्स हैं। अब अगेन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू टू फॉर्म्स, ये भी दो फॉर्म में डिफरेंशिएट हो गए। अब ये दो फॉर्म में कैसे डिफरेंशिएट हो गए, तो इसमें ये फॉर्म डिफरेंशिएट होने की वजह ऐसी है, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि आपको जब फूड मटेरियल बनाना है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना है। अब बैक्टीरिया के अंदर आपको डाइवर्स टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म मिलेगा, इसको याद रखो, डाइवर्स टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। और डाइवर्स टाइप होने की वजह से आपको ये दोनों डिफरेंट अलग अलग मिल रहे हैं। उसके अलावा इनके अंदर भी आपको
अगेन अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, तो डाइवर्स टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म आपको मिलेगा। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जहां आ जाती है, मेटाबॉलिज्म मींस व्हाट, द ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स इन द बॉडी और इन द सेल। जितने केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं वो सब काम कहां आते हैं, दे आर ग्रुप्ड अंडर द मेटाबॉलिज्म, वो सब के सब कहां आएंगे, मेटाबॉलिज्म के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अभी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो है, तो इन्हें मेटाबॉलिज्म करने के लिए दे यूजेस द एनर्जी, उनको मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी कहां से आएगी, सो सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर ऑफ टू टाइप्स, उसके बेसिस पर इनके दो टाइप हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप जो है दैट इज फोटो ऑटोट्रोपिक, उसमें पहला जो है वो फोटो ऑटोट्रोपिक। अब यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं आपको, सोर्स ऑफ कार्बन आपके सामने है, सोर्स ऑफ CO2, सॉरी सोर्स ऑफ कार्बन, दैट इज एन CO2। ठीक है, सोर्स ऑफ कार्बन जो है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और सोर्स ऑफ एनर्जी लेना पड़ेगी अभी आपको यहां पर, सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी क्या होगी, सो सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट इज सनलाइट, एंड बिकॉज ऑफ सनलाइट दिस इज फोटो। ये जो फोटो वर्ड है ना, ये किस वजह से है, ये बिकॉज ऑफ सनलाइट है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? अब आगे चलेंगे हम लोग। तो फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो है तो सनलाइट एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। ध्यान में रखो, बैक्टीरिया के अंदर या तो किंगडम मोनेरा के अंदर हमको सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट यूज करने वाले सेपरेट ऑर्गेनिज्म देखना है, दैट इज वी कॉल्ड सियानोबैक्टीरिया। उन्हें हम क्या कहते हैं, सियानोबैक्टीरिया। अब सियानोबैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रोपिक ऐसे है कि सियानोबैक्टीरिया लाइट ट्रैप करते हैं, लाइट के जरिए से वाटर, याद रखो वाटर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, और जिसको ऑक्सीडाइज किया जाता ऐसा कंपाउंड है। तो सियानोबैक्टीरिया वाटर यूज करते हैं, लेकिन अगर आप बैक्टीरिया में देख रहे हो या तो यू बैक्टीरिया में आप अगर देख रहे हो तो फोटो ऑटोट्रोपिज्म होते वक्त में देयर इज नॉट ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता। आप इसको याद रखो कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो फोटोसिंथेसिस होते वक्त में जब फूड मटेरियल तैयार करना होता है तो उस वक्त में जो रिलीजिंग कंपाउंड होता है, द रिलीजिंग कंपाउंड इज एन ऑक्सीजन, उस बेसिस पर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हम उसे कहते हैं। सो सियानोबैक्टीरिया के अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मिलता है, लेकिन यू बैक्टीरिया के अंदर हम यहां पर जो फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं ये फोटो ऑटोट्रोपिक तो है, लेकिन दे डू नॉट लिबरेट और दे डू नॉट रिलीज द ऑक्सीजन, दे डू नॉट रिलीज द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। तो यहां पर होता क्या है, तो यहां पर हाइड्रोजन सोर्स, या तो हम उसे यूं कहेंगे कि वाटर जो ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है उसकी जगह पर यहां पर सल्फर कंपाउंड यूज किया जाएगा, दैट इज यूज ऑफ सल्फर कंपाउंड इन प्लेस ऑफ वाटर फॉर द पर्पज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए सल्फर कंपाउंड। सो ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड जो इसके अंदर होगा दैट इज सल्फर कंपाउंड, वाटर नहीं है, मैं इसे इन ब्रैकेट लिखता हूं, इन प्लेस ऑफ वाटर, वाटर की जगह पर क्या होगा, यहां पर सल्फर कंपाउंड होगा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात आप याद रखो यहां पर कि आपको लाइट अब्सॉर्ब करना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू अब्सॉर्ब द लाइट, और लाइट अब्सॉर्ब करने के लिए ग्रीन पिगमेंट का होना जरूरी है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, दैट इज एन क्लोरोफिल, इट इज मस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टू अब्सॉर्ब द लाइट। सो these photo autotropic eubacteria are green in color। ये कैसे हैं, they are green in color। अब आप ये बात ध्यान में रखो, ये ग्रीन है लेकिन
ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता बल्कि क्या रिलीज होगा, यहां पर सल्फर कंपाउंड है। जैसे आप इसको ले लो, H2S है, मैं आपको यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं, H2S। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं ना तो H2O यहां पर यूज किया जाता, तो H2O इस पर लाइट वर्क करता है, तो लाइट क्या करेगा, इसको स्प्लिट करेगा, H2 अलग करेगा और ऑक्सीजन अलग करेगा। इसमें से H2 जो है आपका, ये H2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा। ये किससे मिलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा जो आपका फूड बनाएगा। ओके, अब ये जो ऑक्सीजन जो बचा, ये क्या किया जाएगा, ये रिलीज किया जाएगा। इसको याद रखो, इसको याद रखो। सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है, जिसको रिलीज किया जाता, वो एक्चुअली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर होता है, लेकिन यहां पर यो बैक्टीरिया के अंदर वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं किया जाएगा, यहां पर सल्फर कंपाउंड यूज किया गया, जैसे H2S यहां पर यूज किया गया, तो इसमें से रिलीजिंग कंपाउंड ऑक्सीजन ना होते हुए क्या होगा, यहां पर S होगा जिसको रिलीज किया जाएगा। एग्जांपल याद रखो, इस पर नीट के अंदर सवाल किया गया है, इसलिए IMP क्वेश्चन है, और IMP पॉइंट आपने कहा तो भी चलेगा। सो एग्जांपल्स, इसके अंदर जो एग्जांपल है दैट इज क्लोरोबियम, ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल लोगे आप दैट इज क्रोमैटियम। ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, सल्फर रिलीज करेंगे इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, और ये हो गए फोटो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसके अपोजिट में हमको अनदर थिंग देखनी है हेटेरोट्रोपिक के अंदर। ठीक है, अब आप हेटेरोट्रोपिक के अंदर आ जाओ। हेटेरोट्रोपिक के अंदर भी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यहां भी एनर्जी के सोर्स के बेसिस के ऊपर फिर अगेन दो टाइप बनते हैं। इसमें से एक टाइप हो गया फोटो हेटेरोट्रोपिक, फोटो हेटेरोट्रोपिक। अब आप सवाल करोगे, आप सोचोगे कि हेटेरोट्रोपिक तो है, बट हाउ दे कैन यूज द लाइट एनर्जी, जादू, इज इट क्लियर ना, जादू एन एनिमल, एलियन होगा, वो कहीं से आया होगा, समझो वो मूवी के अंदर उसको बताया होगा, लेकिन वो एज ए एनर्जी सोर्स क्या यूज करता था, वो एज ए एनर्जी सोर्स ही यूजिंग द लाइट। सम यूबैक्टीरिया as a energy source uses the sunlight, but they do not produce their own food material, वो उनका अपना फूड मटेरियल नहीं बनाते। Why they can't produce this? Because मैंने आपको वजह बता दिया, कार्बन सोर्स इज नॉट एक एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सोर्स यहां पर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन सोर्स यहां पर एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं सोर्स ऑफ कार्बन, तो फोटो हेटेरोट्रोपिक के अंदर सोर्स ऑफ कार्बन ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जो एक्सटर्नल है, वो क्या होगा यहां पर एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल है। उसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी सोर्स यहां है सनलाइट, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन दैट इज सनलाइट। ओके, अब यहां पर आप देखो डिफरेंस सिर्फ उतना ही है जो मैंने आपको बताया, सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर CO2 है, लेकिन कौन सा CO2 ये एटमॉस्फेरिक CO2 है, लेकिन यहां पर सोर्स ऑफ कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसको आप अच्छे से याद रखो, या तो ये डिफरेंस को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो इसके अंदर हम एग्जांपल लेंगे। अभी यहां पर ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड, यहां ऑक्सीडाइज का रिलेशन आता ही नहीं है यहां रिलेशन, क्योंकि ये खुद का फूड मटेरियल खुद बना ही नहीं रहा है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन का कोई रिलेशन आता नहीं है। हां, एनर्जी प्रोडक्शन का रिलेशन आता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी यूज करना है फॉर द रिलीज ऑफ द एटीपी, एटीपी रिलीज करने के लिए एनर्जी यूज करना है, इसको याद रखो आप। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड फॉर एनर्जी रिलीजिंग, या तो एनर्जी बनाने के लिए
दे आल्सो यूजेस द ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल का यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जैसे हमारे बॉडी में होता है। तो उस तरीके से यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल आप लोगे, दैट इज एन रोडोस्पाइरिलम। एग्जाम्पल रोडोस्पाइरिलम। अब इसमें और एक बात आप याद रखो, सनलाइट लेना है और सनलाइट लेने के लिए इनको कैसे बनना पड़ेगा, ग्रीन। ओके, अब ये भी कैसे हो गए फिर, दे आर ग्रीन इन कलर। ये कैसे हो गए, ये ग्रीन इन कलर हो गए। अब हम लोगों ने अभी तो सिर्फ एक एक टाइप पढ़ा है। यहां आपने फोटो ऑटोट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट है। फोटो हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट है। अब सेकंड टाइप, कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो हेटेरोट्रॉपिक। अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है और कीमो हेटेरोट्रॉपिक के अंदर क्या होता है। सो द फर्स्ट कीमो ऑटोट्रॉपिक फ्रॉम द ऑटोट्रॉपिक नेचर। अब कीमो ऑटोट्रॉपिक, अब आप यहां देखो, हमने फोटोट्रॉपिक में क्या किया था, सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट यूज की थी, ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कह रहे थे, फोटोट्रॉपिक। हम इसे कह रहे कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कीमो, ओके। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो केमिकल रिएक्शन होगा। यहां क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस कौन से, उसमें स्पेसिफिकली वो केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनर्जी रिलीज करने के लिए ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। तो ये ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। यहां पर कहां का, किसका ऑक्सीडेशन होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एनर्जी कैसे रिलीज की जाएगी, ये एनर्जी कहां से बनती है, ये एनर्जी बनेगी, ये एनर्जी रिलीज की जाएगी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉकस, इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो ये काम करते हैं। ओके, सो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्राइट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, अमोनिया हो गया, सो इन पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जाएगी। अब इन पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जाने के बाद में जो एनर्जी बनेगी, दैट एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम इट, जो एनर्जी आपसे रिलीज की गई, दैट विल बी यूज्ड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और ये एटीपी यूज की जाती है आपके बॉडी के अंदर। ये एटीपी कहां यूज की जाएगी, आपके मतलब बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर ये एटीपी का यूज किया जाएगा, जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकता। ओके, अब इसमें सनलाइट तो कुछ है नहीं, सनलाइट तो कुछ यूज नहीं किया जा रहा। इसका मतलब यह है कि दे आर नॉन ग्रीन। सबसे बड़ा फायदा कीमो ऑटोट्रोपिज्म का, सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्पेसिफिक मिनरल्स या तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, उसका रीसाइक्लिंग करना। आप लिख लो इसको, राइट डाउन इन योर नोटबुक, क्या है, दैट इज रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज। अब वो कौन से हो सकते, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, वॉट एवर दैट। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट का रीसाइक्लिंग करना, ये इसका फायदा है, ये इसका काम है। एग्जाम्पल में लिख लो, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इस तरीके के बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको यहां पर कीमो ऑटोट्रोपिज्म बताया। अब हम जाएंगे कीमो हेटेरोट्रोपिज्म की तरफ, या तो कीमो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की तरफ। अब ये जो कीमो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका एनर्जी सोर्स और इनका कार्बन सोर्स दोनों एक ही होता है। कीमो है ना, तो यहां पर केमिकल रिएक्शन है, लेकिन केमिकल रिएक्शन यहां ऑर्गेनिक मटेरियल का है। यहां क्या था, यहां केमिकल रिएक्शन इनऑर्गेनिक मटेरियल का था, अब यहां पर ऑर्गेनिक मटेरियल का होगा।
So source of energy as well as source of carbon both are external organic compound. Source of energy and source of carbon दोनों भी क्या हो गए? एक्सटर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये एक्सटर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग तरीके से लेंगे। कैसे लेंगे? कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप बनाएंगे। वैसे यू बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप बनाते हैं, जैसे राइजोबियम एग्जाम्पल है। अब ये राइजोबियम ये क्या करता है? ये लिग्यूमिनस प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। वो कहां फिक्स करेगा? इनटू द सॉइल। जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? फिर एक तरीके का वो प्लांट के साथ में रहकर अपना न्यूट्रिशनल सोर्स अवेलेबल करेगा। प्लांट के अंदर रहने वाला जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट खुद बनाता है, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल ये खुद के एनर्जी सोर्स के लिए यूज करेगा। अच्छा, प्लांट को भी इसको कुछ देना है, तो ये प्लांट को क्या करेगा? ये प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करेगा, जो प्लांट को इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये क्या करेगा? ये प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करा के देगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप। समझ में आ रही है आपकी बात? ठीक है, मैंने ये कंसेप्ट आपको ये एक एग्जांपल बताया है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर हम ले सकते हैं। अब मैंने यहां पर क्लियर किया आपको एक्सटर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब मैंने ये तो आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक्सटर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट बनकर लेते हैं। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, टाइफॉइड डिसीज, सिट्रस कैंकर, प्लांट के अंदर होने वाला डिसीज है। ठीक है, और कई सारे ऐसे डिसीजेस है जो एक्सटर्नल अदर ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करके उसके अंदर से ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेते हैं और वो ऑर्गेनिक मटेरियल पर केमिकल एक्टिविटी कर कर अपनी खुद की एनर्जी बना लेते हैं। इज इट क्लियर? उस बेसिस पर मैंने यहां पर 3 टाइप्स बनाए। एक है पैरासाइट, जो क्या करेगा? लिविंग मैटर। पैरासाइट किस पर है? ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग मैटर। दूसरा है सैप्रोब्स, जिन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं, सैप्रोब्स। अब सैप्रोब्स डेड ऑर्गेनिक मैटर, कहां? डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है? कुछ प्लांट होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, डेड हो जाते हैं, तो डेड होने के बाद उनका डिकम्पोजिशन किया जाता। सैप्रोफाइट हैविंग द एबिलिटी ऑफ द डिकम्पोजिशन, हेंस सैप्रोब्स आर आल्सो कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स। लिख लो, कहीं एक कोने में लिख लो, सैप्रोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स? बिकॉज दे आर यूजफुल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर और द डेड एनिमल्स, द डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनका डिकम्पोजिशन करने के लिए यूज। और डिकम्पोजिशन क्यों करते हैं? तो वो खुद उनका फूड सोर्स है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल ये डेड ऑर्गेनिक मैटर में से लेंगे सैप्रोफाइट्स, और इसके अंदर कुछ सिम्बायंट है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। कुछ सिम्बायंट है जो क्या करेंगे? जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाएंगे। प्रोड्यूसेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप, लिख लो, प्रोड्यूसेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ other living organism for external source of energy and carbon. Simply आप ये कह सकते हो for external organic compound. ठीक है, मैंने यहां पर आपको कीमो हेटेरोट्रोपिज्म अच्छे से बताया है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, अभी जो अगला पॉइंट हम लोगों को देखना है, अब हमने यहां पर न्यूट्रिशन ये पॉइंट पूरा कर लिया, और लास्ट पॉइंट हमको यू बैक्टीरिया का देखना है, दैट इज एन रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं हम यहां देखेंगे। तो बच्चों, न्यूट्रिशन तो हमने खत्म कर दिया, अब रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया कैसे होगा। यू बैक्टीरिया में यहां भी डाइवर्सिटी नजर आती है। अलग अलग यू ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो अलग अलग यू बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे हम देखेंगे
कुछ बैक्टीरिया, सम यूबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिशन के जरिए से रिप्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्शन करना इनके लिए जरूरी है, क्यों? दे हैव टू इंक्रीज देयर स्पेसिस, उन्हें अपनी स्पेसिस इंक्रीज करना है। अच्छा, स्पेसिस क्यों इंक्रीज करना है? फॉर देयर स्टेबिलिटी इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर स्टेबिलिटी के लिए उनको क्या करना है, उनकी स्पेसिस इंक्रीज करना है। ठीक है, चलो, तो ये इसके पीछे कॉज है रिप्रोडक्शन का। सो रिप्रोडक्शन इनको क्या करना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ऑर्गेनिज्म बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीके से इनका रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि तो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, सिंपल है। मोस्टली दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। मोस्टली वह कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? असेक्सुअली। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक टाइप बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन आपको मालूम है, आपका ये बैक्टीरिया है, ठीक है। अभी ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इसके 2 पार्ट बनाएगा। ये यहां पर एलोंगेटेड हुआ, एक FTSZ रिंग यहां पर बनी। इसको याद रखो, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहां पर इंट्रोड्यूस कराया हूं। FTSZ रिंग जो दोनों के बीच में बनती है, ये क्या करेगा, दोनों को अलग करेगा। तो पहले डीएनए रिप्लिकेट हुआ, इससे बीच में रिंग आ गई, और बाद में क्या होगा, 2 बैक्टीरिया यहां पर अलग हो गए। दिस इज वी कॉल्ड बाइनरी फिशन, ठीक है। फ्री माइटोटिक डिवीजन होकर क्या होता है, यहां पर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं और 1 से 2 ऑर्गेनिज्म यहां पर बन जाते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन हो गई बाइनरी फिशन की। बाइनरी फिशन कहां से आया, विच इज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर किया? सो बाइनरी फिशन डिस्कवर्ड बाय, इट इज डिस्कवर्ड बाय सर जोशुआ लिडरबर्ग। सर जोशुआ लिडरबर्ग, ही डिस्कवर्ड द बाइनरी फिशन, और इसको डिस्कवर किया था इन ई कोलाई। इसको डिस्कवर किया इन ई कोलाई। ई कोलाई मीनिंग इश्चरशिया कोलाई, इसका पूरा नाम है। सो ये इश्चरशिया कोलाई जो है, इसके अंदर जोशुआ लिडरबर्ग ने इसको डिस्कवर किया। आपको पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जोशुआ लिडरबर्ग का नाम, जिसने क्या किया, सॉरी जोशुआ लिडरबर्ग ये आपके बाइनरी फिशन के अंदर नहीं है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन एक्चुअली मैं ई कोलाई पर, ई कोलाई की वजह से मेरे समझ में आ गया वो। सो जोशुआ लिडरबर्ग इसके अंदर से निकाल दो आप, क्योंकि जोशुआ लिडरबर्ग इट इज रिलेटेड विद द कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है। सो इसकी डिस्कवरी आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि डिस्कवरी आपको कॉन्जुगेशन के बारे में पूछा गया है। लेकिन अब बाइनरी फिशन किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में मिलता है? सो एग्जांपल, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं, बैसिलस मेगाटेरियम। बैसिलस मेगाटेरियम, ठीक है। वैसे एक कंप्लीट फैमिली है, मतलब फाइलम जो इस किंगडम के अंदर आता है, एक कंप्लीट फाइलम है, दैट इज एन फर्मिक्यूलेट। ये फैमिली है जिसके अंदर, ये फाइलम है जिसमें, जिसके अंदर के स्पीसीज के अंदर आपको बाइनरी फिशन मिलेगा। बाइनरी फिशन ऑकर्स इन दीज फाइलम ऑफ द किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब ये एक कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन मैं आपको यहां बता दूं, अगर यू बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर है, इफ इन अनफेवरेबल कंडीशन, अगर ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, नॉर्मल कंडीशन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, समझ लो अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। अब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अगर बैक्टीरिया के, यू बैक्टीरिया के, तो क्या करेगा, इट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स, देयर इज एन स्पोर फॉर्मेशन। इनके जो स्पोर्स होते हैं दैट आर ऑल एंडोस्पोर्स, ये जो स्पोर्स हो गए दैट आर ऑल एंडोस्पोर्स। तो ये जो स्पोर बनाते हैं, तो ये स्पोर आगे जाकर डेवलप होगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, एक न्यू
यू बैक्टीरिया ये क्या करेगा, बनाएगा। सो स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर हमको इनके अंदर देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आपको एग्जांपल लेना है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, तो अब नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फिशन करते हैं, नॉर्मली ऑर्गेनिज्म फिशन करते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म फिशन के अलावा स्पोर भी फॉर्म करते हैं अनफेवरेबल, तो इन्हीं को ले लो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जो क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे अनफेवरेबल। तो इनके स्पोर्स हम लोग कुछ अलग एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये टॉपिक जब हम देखेंगे तब आपको मैं इसको बता दूंगा, क्योंकि बैसिलस thuringiensis एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी शो करता है। इट शोज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। अब अगर ये इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी अगर शो करता होगा तो हम इसके स्पोर्स क्या कर सकते हैं, प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसके स्पोर्स प्लांट पर स्प्रे कर दिए गए तो आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं गिरेगी, तो ये हो गया ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, जिससे आपके प्लांट को भी प्रॉब्लम नहीं, आपके सॉइल को भी प्रॉब्लम नहीं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इसलिए बैसिलस thuringiensis यूजफुल है। तो उसके स्पोर्स, तो स्पोर्स पर से समझ में आता कि बैसिलस thuringiensis अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। सो ये दो कंडीशंस मैंने आपको यहां बताए। अब एक कंडीशन आपको असेक्सुअल के अंदर ही सेक्सुअल टाइप में मिलेगी, मतलब सम बैक्टीरिया शोज सेक्सुअल बिहेवियर फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। सम बैक्टीरिया, इसमें सम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करेंगे, सेक्सुअल बिहेवियर शो करेंगे, शोज सेक्सुअल बिहेवियर फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल बिहेवियर है। अगर रिप्रोडक्शन के लिए यहां पर सेक्सुअल बिहेवियर अगर है तो वो कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई, आपका ये एक बैक्टीरिया है जो सेक्सुअल बिहेवियर शो करता है, और एक है माइकोबैक्टीरियम, जैसे टीबी के अंदर एक बैक्टीरिया है जिससे टीबी होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो ये माइकोबैक्टीरियम उसी के अंदर के एक स्पीसीज है जो सेक्सुअल बिहेवियर शो करता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये सेक्सुअल बिहेवियर कैसे, इसके अंदर क्या होता है, अपने मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मोस्टली यहां पर डीएनए रिकॉम्बिनेशन होता है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ट्रांसफर होता है, जो हम जेनेटिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो यहां भी वही होता है। तो यहां होता क्या है, यहां एक बैक्टीरिया है और फिर दूसरा इनका बैक्टीरिया है। अब ये दोनों बैक्टीरिया जो है ये इसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, और इसके अंदर जो प्लाज्मिड है जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है उसकी कॉपी बनाकर वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा दूसरे के अंदर, सेकंड के अंदर। तो ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड दूसरे के अंदर गया, फिर वो स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन हुआ और रेप्लिकेशन होकर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए बना और दोनों का सेपरेट जेनेटिक मटेरियल हुआ। अब इसमें हुआ क्या कि आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, योर जेनेटिक मटेरियल हैज बीन ट्रांसफर्ड। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे हुआ। लेकिन ये जो प्रोसेस होगी, दिस प्रोसेस, यहां पर सेक्सुअल बिहेवियर मींस दी डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर। और इसके अंदर क्या होता है, दो बैक्टीरिया एक साथ आते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, इसलिए इसको कहेंगे हम कॉन्जुगेशन। दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेशन। और ये कॉन्जुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, कॉन्जुगेशन भी होता है। सो ये कॉन्जुगेशन जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल बिहेवियर शो करती है। कॉन्जुगेशन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। जैसे बडिंग होता है या तो आपका बाइनरी फिशन हो गया, तो उसी तरीके से कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, लेकिन ये सेक्सुअल बिहेवियर शो करता। क्या ऐसा कौन सा ऐसा थिंग है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा फैक्टर है वो बैक्टीरिया के अंदर जो कॉन्जुगेशन स्टिमुलेट करता है या तो जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन होता है। सो दैट फैक्टर इज ए फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर। वो कौन सा फैक्टर है, फर्टिलिटी। जो प्लाज्मिड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो स्मॉल प्लाज्मिड है, और उस स्मॉल प्लाज्मिड के अंदर ये फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है। सो जो प्लाज्मिड के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होता है वही प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन के काम आता है। इसलिए सभी बैक्टीरिया ये कॉन्जुगेशन नहीं शो करते, इसको याद रखो। ऑल बैक्टीरिया डू नॉट शोज द conjugation. Some specific bacteria, those having the small plasmid called as the F plasmid, जिसे हम क्या कहेंगे, F plasmid। F plasmid पर क्वेश्चन किया गया है
AIPMT के अंदर, ठीक है। सो F प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया के अंदर होता है वही बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। अब F प्लाज्मिड क्यों? हैविंग द F फैक्टर। अब ये F फैक्टर की वजह से आपके ऑर्गेनिज्म दो हो गए। सो जो डोनर मतलब जो जेनेटिक मटेरियल डोनेट कर रहा है उसे कहते हैं F प्लस, और जो एक्सेप्टर है जो जेनेटिक मटेरियल रिसीव कर रहा है उसे कहते हैं F माइनस। तो F प्लस यहां पर कहेंगे हम मेल और F प्लस हम कहेंगे फीमेल। मेल और फीमेल बोथ कम्स टुगेदर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां पर उस तरीके की कंडीशन बन रही है, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड हेयर, उस तरीके की कंडीशन यहां पर बन रही है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के अलावा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे, मतलब इसको देखा गया है निमोनिक बैक्टीरिया में, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया के अंदर, इसके अंदर भी, इसके अंदर स्ट्रेन होते हैं उस तरीके से, जैसे इसमें होता है एक रफ स्ट्रेन, ओके, एक होता है स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। अब रफ स्ट्रेन में से स्मूथ स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जब ऐसा होता है तो ये इस वजह से होता है कि बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, ओके। अब इसके एग्जांपल हम लोग फिर देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के अंदर, वो उस वक्त में देखेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो पॉइंट है दैट इज यू बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन के साथ में फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर सारे पॉइंट मैंने पूरे कर लिए। अब बाकी रहा सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और वो आपका एक्टिनोमाइसीट्स, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।